Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. Kids, we have started this chapter PowerPoint and we have done some of the classes and there we have read about various component of MS PowerPoint. ठीक है, MS PowerPoint के different component के बारे में हमने पढ़ा. Now one more thing is there, and in the last class we have done the book reading. Now today we will do some practical work. Okay, today we will do some question based on, I mean not question but some of the practical work in MS PowerPoint. Okay, so let us start doing that now. So we have done introduction part. We have seen that PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft and it allows us to create presentation. This much we have done and we have seen this also. Now today I'm going to show you this PowerPoint. Today I'm going to show you this PowerPoint window in the software. Okay. तो जो भी अलग अलग सी चीजें जो भी अलग अलग से कंपोनेंट हमने देखे थे एज इन we have seen the quick access toolbar, we have seen the title bar, then we have seen the window control button, ribbons and text placeholder. These all things, ये सारी चीजें मैम is going to show you in the software. So let us see. Okay, so this is what this is the this is what this is the work area of MS PowerPoint. So as you can see, अलग अलग component मैम ने बताए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि this part is what splitter. ये split कर रहा है ना दो part को. देखो यहाँ पे ये दो part को क्या कर रहा है, split कर रहा है. This whole area is what? This whole area is our work area. These are the different tabs. ये सारे ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, these are what? These are the different tabs. ये सारे different tabs हैं MS Word के. Now what are the other thing? Let us see और भी क्या क्या चीजें हमें देखनी है इसमें. Where's our PDF? Yeah. Then we have to see text placeholder, view button, notepad. Let us see all of these. ठीक है, तो चलो मैम दिखाएं आपको. देखो these are what the, ये सारे क्या है, व्यू बटन है. यहाँ पे ये सारे क्या है, व्यू बटन है. जैसे this is slide show view. Now this is what, this is slide sorter view, editing view, and here you can add the notes. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नोट्स आप ऐड कर सकते हो अपने टेक्स्ट के बारे में. व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड एनीथिंग. ठीक है, जैसे सपोज आई हैव एडिटेड दैट क्लास 4 एंड क्लास 5. इस तरह करके मैंने कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं किसके लिए बना रही हूँ. आई एम मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन फॉर क्लास 4 and 5. तो मुझे ये बात पता चलेगी कि आई एम मेकिंग दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन for class 4 and 5. Now class, before moving toward the lesson, I want to show you a PowerPoint presentation. In the beginning of this chapter, I have shown you a presentation based on MS. I have shown you a presentation. I have shown you this presentation based on, yeah, based on this chapter, that is Microsoft, based on solar system. And today I would like to show you here this presentation, that is parts of a plan. So see, if someone wants to explain something about parts of a plant, see how beautifully this presentation has been made. है ना, कितनी beautifully यहाँ पे हमने चैप्टर का नेम दे दिया. फिर देखो बैकग्राउंड में हमने पिक्चर डाल दिया है, प्लांट की पिक्चर डाल दी. कितना खूबसूरत ये प्रेजेंटेशन लग रहा है ना. यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर्स भी ग्रेडियंट में डाले हैं, सो दैट ये हमें एक प्लांट का व्यू दे. जिस तरह से प्लांट ग्रीन ग्रीन सा होता है, उस तरह का व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिले. तो सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग. नाउ सी, अब ये भी देखो, यहाँ पे कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है, कितने अच्छे फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, कितने प्यारे फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, कितने
अच्छे से पार्ट ऑफ द प्लांट को डिफाइन किया गया है। एंड नाउ कितने अच्छे से यहाँ पे कितना प्यारा इन्होंने पिक्चर यूज किया। यहाँ पे इन्होंने ये पिक्चर, कितनी प्यारी पिक्चर इन्होंने यूज की है यहाँ पे, है ना। सो यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने कितनी प्यारी पिक्चर यूज की है। सो सी, आपको देखो, अगर मुझे ये किसी को पार्ट ऑफ द प्लान पढ़ाना है तो पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, एक बेस्ट वे है एक्सप्लेन करने का अबाउट। PowerPoint presentation is what? PowerPoint presentation is a best way to explain about this thing. Anything like जैसे हम अभी part of the plan पढ़ रहे तो यहाँ पे why it is the best thing, because here I can combine pictures. Here I can combine pictures as well as along with the picture I can also combine pictures and text hand in hand. तो जब हम पिक्चर्स एंड टेक्स्ट हैंड इन हैंड लेके चलते हैं तो क्या फायदा होता है, पिक्चर से हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव बनता है। जैसे कि ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है, देखो कितनी प्यारी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई, कितनी प्यारी पिक्चर लगाई गई है। फॉन्ट साइज का भी यूज कितना सोच समझ के किया गया है, फॉन्ट साइज का भी यूज किया है, कितना सोच समझ के किया गया है। बुलेट्स का यूज किया गया। आई हैव टोल्ड यू ना, इन बुलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड चैप्टर में, जब हम एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो इन दैट चैप्टर मैम हैज एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस बुलेट्स, ठीक है। तो this presentation, this slide is increasing the beauty of the subject. Now next is, अब देखो पहला इन्होंने लिया roots, तो now they in the next slide they are explaining us about the roots. नेक्स्ट स्लाइड में ये क्या कर रहे हैं, हमें रूट्स के बारे में समझा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो रूट्स के बारे में, इस स्लाइड में रूट के बारे में समझाया। एंड हियर इन द कमिंग स्लाइड, यहाँ पे अब इस स्लाइड में इन्होंने क्या किया, इस स्लाइड में इन्होंने रूट की दो तरह की पिक्चर यहाँ पे लगा दी, है ना। हम चाहें तो और भी इसको बढ़ा सकते हैं। हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट करके हम इसे और भी ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं। That one of the following is tap root and the other one is fibrous root. तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट हम मेंशन करके। ओके, ये तो दो बातें हुई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब इन्हें ट्री रूट, अब इधर यहाँ पे प्लांट रूट इन्होंने दिखाया। प्लांट रूट दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे से दो प्लांट लिया और उसकी रूट यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया। नेक्स्ट इन्होंने ट्री रूट दिखाने की एक बड़े से ट्री। नाउ सी, अब यहाँ पे भी देखो एक फुल पूरी पूरी की पूरी एक पेज का यूज, एक पूरे स्लाइड का यूज इन्होंने किसमें कर लिया, एक पूरी स्लाइड का यूज इन्होंने कर लिया है, एक पूरी स्लाइड का यूज इन्होंने कर लिया है ट्री रूट दिखाने के लिए, ठीक है। नाउ दे आर टेलिंग अस अबाउट द स्टेम। सो हियर दे आर टेलिंग अस अबाउट द स्टेम्स, स्टेम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। And in the next slide, see plant stem. They are telling us about the plant stem. And see how beautiful this picture is. ये पिक्चर कितनी प्यारी एक कैटरपिलर की पिक्चर इन्होंने ली है, ये दिखाने के लिए कि प्लांट स्टेम्स पे कभी कभी छोटे छोटे से ऐसे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, कैटरपिलर भी मिलता है ना। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रेजेंटेशन इज अ ग्रेट वे। अगर स्लाइड्स को, अगर एमएस पावर पॉइंट एक इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है कि वो बहुत सारे मैसेजेस वो क्या कर सकता है, कन्वे कर सकता है, इफ इट इज ब्यूटीफुली मेड। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट सी, अब ये लोग क्या बता रहे हैं, ट्रंक के बारे में बता रहे हैं। तो पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट को कितना ब्यूटीफुली इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक स्लाइड तैयार करके दिखाया है।
नाउ सी नेक्स्ट इज व्हाट आफ्टर द ट्रंक दे आर टॉकिंग अबाउट द लीव्स। देखो लीव्स की पिक्चर ले लिया, देन फ्लावर की बात किया। अब देखो अब फ्लावर्स में तो हम चाहें तो कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर का यूज करके हम पीपीटी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द, अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द सीड। नाउ हियर यू हैव टू नोटिस वन थिंग, along with this along with this point they have also added this YouTube link here। ठीक है, तो YouTube लिंक भी अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें, तो वी विल रीडायरेक्ट ऑन YouTube। कि सीड से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो ऑन लिंक ऑन द गिवन लिंक। ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें ये भी सुविधा देती है, ये भी फैसिलिटी हमें देती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। हम क्या कर सकते हैं इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वी कैन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें ये भी सुविधा देती है कि हम क्या कर सकें, हम उसमें लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। नॉट ओनली ऑफ यूट्यूब, खाली यूट्यूब लिंक नहीं, हम चाहें तो उसमें अलग अलग जगह की, अलग अलग जगह से मेरा मतलब है हम वेबसाइट्स की लिंक दे सकते हैं, हम पिक्चर्स की लिंक दे सकते हैं, इमेजेस की लिंक दे सकते हैं, या हम एक और स्लाइड की भी, या हम एक और प्रेजेंटेशन की भी लिंक दे सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ फैसिलिटी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या करता है, आपको कई सारी फैसिलिटी देता है। सीट की पिक्चर लगा दी, ठीक है। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक जैसा कि मैम ने आपको बताया राउंड अप मीन्स व्हाट। अब यहाँ पे इन्होंने क्विज रख दिया, तो दिस कैन ऑल्सो बी डन कि मैम ने आपको चैप्टर समझाया या आपने कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने क्या किया, अपने ऑडियंस के लिए एक क्विज रख दिया। आपने क्या किया, अपने ऑडियंस के लिए जो भी आपके क्विज में आपके पीपीटी को आप जिन्होंने देखा उनके लिए आपने एक क्विज रख दिया, है ना। तो दीज ऑल विल मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। Now here they have learned put the question and answers, okay, and now this is what, this is the end of the slide, okay। So see यहाँ पे हमने देखा that how beautifully a presentation can help us, to make our टू कन्वे अवर मैसेज। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमारी कितनी हेल्प करती है किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए, है ना। यहाँ पे हमने ये चीज देखी। नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ पे देखो अलग अलग पॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है, जैसे टाइटल बार, फाइल टैब, इन सब के बारे में मैम ने आपको समझाया था, इन सब के बारे में मैम ने आपको अच्छे से समझाया था। बट स्टिल लेट्स डू इट अगेन। Now we have, in the last class we have done up to text placeholder तक मैम ने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। Now today we will see how we can create a blank presentation with design theme। A blank presentation, we have to create a blank presentation with a design theme। Now अगर मैं ये अपना पावर पॉइंट ओपन करूं, अब देखो अगर मैं ये अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट एरिया दिख रहा है ना। नाउ yes, so here I can enter the text। suppose I am entering parts of the plant, ठीक है। now they are telling us that how to create a blank presentation। एक blank presentation कैसे बनाए, with the help of design, एक blank presentation कैसे बनाए, they are going to help us। let's see, okay, so let us read the, now पहले इन्होंने क्या बोला, you can select a particular design theme using the design tab। so you have to click on that design tab। आपने कहाँ क्लिक करना है,
you have to click on that design tab option. ठीक है, आपने design tab पे क्लिक करना है on the ribbon. By default PowerPoint opens a blank site for you whenever you start the program. Now first is click on the design tab. First option is what, that you have to click on the design tab. Next is click on one theme. क्लिक ऑन वन थीम. ठीक है, आप किसी थीम पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो. यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो फॉर मोर बटन. व्यू द फुल लिस्ट ऑफ थीम. The theme is applied to slide 1. When the theme is applied to the slide 1, you can start adding the text. तो चलो करके देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं गई. सपोज मैं यहाँ से पार्ट ऑफ द प्लांट मैंने हटा दिया. ठीक है, मैंने ये हटा दिया. Now I will go to which tab. देखो here I am having the different tabs. These all are the home. Then next is insert. Then next is draw. Next is design, transition, animation, slideshow. ये these all are what? ये सारे क्या थे इसमें, ये सारे थे ये सारे क्या हैं, these all are the tabs. ये सारे tabs हैं, है ना. नाउ सो क्लिक ऑन द tabs डिजाइन बटन. डिजाइन पे आपने क्लिक किया. डिजाइन पे देखो क्लिक करने पे हियर वी आर हैविंग ड्रॉप डाउन एरो. देखो यहाँ पे जब हम ड्रॉप डाउन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ मोर थीम्स. तो व्हाट, दीज आर द डिजाइंस. ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन द मोर थीम्स. मोर थीम पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे. ये सारे आपके पास थीम्स आएंगे जिसमें से आप अपना डिजायर्ड थीम्स क्या कर सकते हो, जो भी आपका डिजायर्ड थीम है आप उसको चूज कर सकते हो. ये सारे ऑप्शंस आपके आप पास आएंगे जो कि आपके प्रेजेंटेशन को क्या बनाएंगे, ये सारे आपके प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे. दीज ऑल विल मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव ओनली. ओके, ठीक है, गॉट इट. ये सारे क्या करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे. तो व्हाट वी हैव टू क्लिक एनी वन ऑफ दिस. कोई भी एक इनमें से हमें क्लिक करना. सपोज इफ आई टेक दिस वन इज इंटीग्रल. इफ आई क्लिक दिस वन, सी व्हाट हैपन. मैंने क्लिक कर दिया एंड लेट्स सी, यू हैव टू वेट. ओके, सो यू कैन सी दैट हमारा प्रेजेंटेशन कुछ कैसा दिख रहा है. हमारा प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का दिख रहा है. अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करूं, देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज ना. अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं दीपावली, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूं फेस्टिवल ऑफ लाइट, है ना. तो हमारा प्रेजेंटेशन कुछ अब इस तरह का दिख रहा है. तो दिस इज व्हाट, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थीम. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज थीम. ठीक है, इसी के बारे में वहां पे बात हो रही थी. ओके, अच्छा, नाउ one thing is also there that is very interesting that I want to show you, that here you can get some designer look. Okay, here you can get some designer look. Now
व्हाट डज आई मीन बाय डिजाइनर लुक? देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट, मैंने ये थीम चुना, तो इन्होंने क्या किया, रिलेटेड कई सारे थीम मेरे यहाँ पे बगल में इधर राइट हैंड साइड इधर इन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो ये हमने देखा हाउ वी कैन ऐड द theme. Now first is what, after adding theme, creating the title slide. Creating the title slide and adding a subtitle. So creating the title slide, what are the steps to, देखो क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन पे क्या किया, एक थीम ऐड कर लिया, हमने थीम ऐड कर लिया, हमने इंटीग्रल नाम की एक थीम ऐड किया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वी हैव टू एंटर द टाइटल, जैसे हमने वहां पे क्या लिखा, दीपावली, सो लाइक दैट ओनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वी कैन एंटर अ टाइटल स्लाइड, ठीक है। तो चलो हमने टाइटल स्लाइड भी एंटर कर दिया। सो PowerPoint assumes that every slide has a title. Any text type after new slide display become title text. In the title text placeholder, click on the title text placeholder box. Type your text in your text placeholder box. The title text is displayed in the title text placeholder and in the slide tab. ठीक है, ठीक है। Now next is what, entering text in subtitle. Click on the subtitle text placeholder box. Type your text in your subtitle text placeholder box. Then the subtitle text is displayed in the subtitle text placeholder and in the slide tab, ठीक है। चलो तो करके देखते हैं इसको। ओके, देखो थीम ऐड करने से, whenever you will add theme in your document, now so what happens, whenever you will add the theme, it will makes your text appear more beautiful. थीम ऐड करने से आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आता है। सो वी हैव डन विद दीज बोथ, हमने ऐड करके देखा हमने दोनों चीज़ें ऐड करके देखी। नाउ हमने क्या किया, हमने हमने यहाँ पे टाइटल भी ऐड किया और फिर यहाँ पे हमने सब टाइटल भी ऐड किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अपडेट योर नॉलेज। So theme is the look, color and graphics of the slide in your presentation. When you create new presentation, PowerPoint prompts you to choose a theme. What happens whenever you will create a new presentation, PowerPoint will prompt you to choose a theme. When you choose a specific non-blank theme, PowerPoint applies a set of color. So what happens, set of color, font and placeholder उस पे क्या होता है, उस पे अप्लाई हो जाता है टू द स्लाइड। थीम में इंक्लूड अ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ग्राफिक्स एंड इफेक्ट्स फॉर द बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। गॉट इट? ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द थीम। इसके ये दिस इज व्हाट, दिस इज theme. Okay, so this is clear. Now next is what, adding a new slide to presentation. Your next step to make the next slide after creating a title slide.
Normally, whenever a presentation is created in addition to slide, one can add text, graphic or chart. Whenever you want to add a new slide, use these steps. ठीक है, आपने पहली स्लाइड बना ली, नाउ यू वांट टू ऐड मोर स्लाइड. वन स्लाइड तो आप चाहिए नहीं, आपको और स्लाइड्स चाहिए. तो व्हाट आर द स्टेप्स? क्लिक ऑन द होम टैब, ऑन द रिबन टैब, क्लिक ऑन द अपर पार्ट ऑफ द न्यू स्लाइड बटन. ठीक है, नाउ लेट अस सी. तो हमारी पहली स्लाइड तैयार है. नाउ वी वांट टू एंटर सम मोर स्लाइड. ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? हमें कुछ और स्लाइड्स चाहिए. ओके, तो वी विल गो ऑन इंसर्ट. इंसर्ट पे देखो, वी विल गो ऑन न्यू स्लाइड. वी विल क्लिक ऑन न्यू एंड हियर वी विल गेट title slide only, title and content, section header. These are the different these are the different variant. पहला कि आपको खाली टाइटल स्लाइड चाहिए, देन टाइटल एंड कंटेंट दोनों चाहिए, देन सेक्शन एंड हेडर चाहिए. व्हाट डू यू वांट? दे आर आस्किंग. ठीक है, अगर जैसे किसी को डिफरेंशिएट करना है, मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है, सपोज इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन होली एंड दीपावली. जैसे आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उसमें सर करवाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाटएवर. ओके, तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करनी है तो मुझे क्या चाहिए? टू कंटेंट चाहिए होगा. ठीक है, तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो आई विल यूज दिस वन और आई विल यूज दिस वन. जैसे दिस वन इज फॉर कंपेरिजन, तो आई कैन यूज दिस वन ना. अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो आई कैन यूज दिस वन. सपोज इफ आई वांट टू ऐड पिक्चर विथ कैप्शन, अगर मुझे पिक्चर चाहिए और पिक्चर के साथ मुझे उसमें कैप्शन भी ऐड करना है, तो आई विल चूज दिस वन. If I want to add just a blank presentation, I will add this one. So these all are the different ways through which I can add a slide. So I am going to choose title and content. Let's see what happened. I have clicked this one and click on add slide. So it will take some time. It will move round and round and yes, see. अभी मेरे स्क्रीन पे क्या हो गया? अच्छा देखो, अब मेरे स्क्रीन पे तो आ गया ऐड टू, मेरी स्क्रीन पे तो आ गया स्लाइड. बट देखो इस साइड, this side, how beautiful options I am getting, है ना. So I'm really like, I really like this first one, तो आई एम गोइंग टू चूज दिस वन. ठीक है, चलो और देख लेते हैं और कौन कौन सी डिजाइन है हमारे पास. तो देखो पावर पॉइंट की, देखो दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड ना. अगर मैं ये वाला चूज करूँ, सो व्हाट हैपन इफ आई चूज दिस वन, तो सी समथिंग लाइक दिस विल हैपन टू माई स्लाइड. स्टिल ब्यूटीफुल है ना. और आगे चल के देखते हैं. Yeah, I can choose this one also. So what will happen if I will choose this one? Yeah, see, देखा कितना beautiful ये दिख रहा है ना. Yes, correct. तो this is how you can add the more slide. आप इस तरह से क्या कर सकते हो अपने और स्लाइड्स आप, या अगर मैं इसको प्लेन रखना चाहूँ तो आई विल क्लिक दिस वन. अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो क्या होगा? मेरा टेक्स्ट एकदम कैसा आएगा? माई टेक्स्ट विल बी प्लेन, slide will be plain. Still better, this side I will write the title and this side I will write the explanation. Title हमने लिखा और इस side what we will write? We will write the explanation. Title के बाद this side I will write the explanation. So I am going to choose the simple one. Where is that? Let's choose this one. First one मुझे बहुत पसंद आया था. तो इधर we will write the slide. Click to add the slide is there ना. So this click to add the title. So here we will add the title. So whatever the title you want to write, you can write here. Okay. Okay. Now the next topic is selecting the text. ठीक है, suppose if you want to change the font style or anything like that, so you have to select the text. So kids, selecting the text and formatting the slides, that we will do in our next class. So today we have done up to adding a slide in a designer theme. And yes, please do practice these at your home and please let me know. Okay, so this is it for today and now we will meet in our next class.